and gentlemen. A very warm welcome to you on Business Today Television. We are back with the world of commodities and discussing the way forward is the price chart on silver. It's crossed 2 lakh rupees a kilo, a fresh record high, opened gap up 4% higher. In the global markets, it's above $65 an ounce. And in the Indian context, on the MCX trading now substantially above 2,05,000 rupees a unit per kilo, up about 5,500-6,000 rupees. Once, ladies and gentlemen, a round number approaches, a lot of profit booking generally happens, but that's not the case. A record low on the rupee, plus a global rally on other metals as well, is pushing the prospects of silver much higher. And coming in are reports from all sorts of research houses that point to new users, newer sectors that are buying, and of course the investment demand that refuses to give up. To discuss this and a lot more, where precious metals, in particular silver, are headed, we are now joined by Miss Vandana Bharti, a very known commentator, investor and trader in the world of precious metals. She works with SMC Global. Namaste Vandana ji, a very warm welcome. We have been following silver with you for a very long time. You must be thrilled with the prospects of silver now above 2 lakh rupees a kilo. It's up 31% in 1 month alone. How are you watching this rise? Shailendra, namaste first of all to you and all viewers, and we are lucky that we are witnessing this kind of rally since 1979. We haven't seen this kind of rally in silver. In 1979 it went up from $6 to $30, so it was a move of around 374% in that year. This year we have seen the rally of 30% or 125% so far in 2025. So there is no end of rally, and this time not retailers or derivative market or miners, they are involved into this commodity. Even governments and many countries, they are involved into this commodity. So this time rally is completely different, and that's why even at the fall of 3%, 4%, 5% or 2%, buyers, they are rushing into the silver. They don't want to miss the opportunity to buy it, even in physical or in like paper terms. Okay. So that sort of explains the background on the present rally in context to the previous one, which was fueled by speculation. This such times it seems to be general physical demand which is running after precious metal. Now, Vandana ji, what ahead? We've seen 2 lakh rupees per kilo on silver. And on an year-to-date basis, if you look at the performance of silver, it has doubled, more than doubled, 116% return in 1 year. यानी कि इसी समय पिछले साल the metal was below 1 lakh rupees per kilo. Where do you see this headed? Do you see excessive speculation, excessive bubble being built into the price? Any cautionary move, or it's all good all the way? Now, after this much rally, we should approach for a cautious trading in this commodity, because it's a rally of around say 140% in MCX, I suppose, because INR depreciated. And structurally, this commodity is very strong, because from last for a decade time, it consolidated in a range of $13 to upside $30, and now it has given a strong breakup there. And this time the mines are old and they are depleted, and new demands are coming, and new mines, they will take 7 years to come into action. So new supply is yet to come, and it will take years to come into this market. So physical scarcity is there, but yes, after this much rally, I am expecting a short of correction in the prices, but this time it is only should be of between 10 to 15%, not like 60% or 50% or 40% like we have seen earlier. So this time correction will be limited here, and I'm not expecting the correction beyond the level of 15 to 20% in silver. Even it is tough at this scenario, because there is only a bullish bet in silver in paper trade as well as in physical, and this commodity, it is trading into premium and in backwardation. So it is
not indicating any soon it is going to be in correction mode any soon. But yes, in the month of March or March onwards, we can see some kind of correction because current month contract is very bullish and only long positions they are creating. ठीक है, तो वंदना जी, जो इन्वेस्टर या जो व्यक्ति इस रैली को अपने तरफ नहीं खींच पाया और वो आतुरता से इंतज़ार कर रहा है कि थोड़ी गिरावट होगी और वो फिर अंदर घुस पाएगा सिल्वर के, उसके लिए आप क्या राय देती हैं? वो दूर से देख रहा है कि रोज़ प्राइस बढ़ता है और वो नहीं ले पा रहा, और अक्सर हम लोगों ने ये देखा है कि जिस दिन हम कदम रखते हैं लॉन्ग साइड पर, उसी दिन करेक्शन शुरू हो जाता है। आपकी क्या राय होगी? ये होता है शालन जी, और मुझे लग रहा है कि सिल्वर में भी हम इसे डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि सिल्वर में जब फॉल आती है 3% फॉल यहाँ पे 6,000 रुपए का डाउनसाइड देता है। तो जब हम डेरिवेटिव में होते हैं ना, तो हमारी मतलब बिल्कुल उस समय हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि 6,000 हमारे लिए काफी मायने रखता है उसमें। लेकिन जो ETF में है, जो फिजिकल में है और जिनका लॉन्ग टर्म का यहाँ पे ध्यान है, जैसे 2 साल 3 साल, तो यहाँ के जो डिमांड सप्लाई का जो नंबर्स है, ये बहुत जल्दी यहाँ चेंज होने वाला नहीं है। उनके लिए मैं कहूंगी कि आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं, और ये लेवल भी यहाँ पे सही है। और मुझे लग रहा है कि 1 से 2 साल में अगर देखा जाए तो वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड $85-90 इन सिल्वर। तो हमारे मार्केट में ये ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी। उनके लिए हर एक छोटा करेक्शन यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पे जब भी एक करेक्शन आए तो पैनिक होने के बदले में उनको यहाँ पे एवरेजिंग करनी है या और ज्यादा वहां पे एक्यूमुलेट करना है। परेशान नहीं होना है कि मैंने तो इतने पे ले लिया और वहां से 10% डाउन है, क्योंकि ये कमोडिटी इतनी ऊपर है, कभी भी ये 5-10% का करेक्शन ले सकती है। ये रिस्क हमेशा बना रहेगा सिल्वर के साथ। लेकिन जो डेरिवेटिव मार्केट में है, उनके लिए ये लेवल्स यहाँ पे एंट्री का नहीं है। मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट दे शुड वेट फॉर 1,85,000 और 1,92,000 काइंड ऑफ लेवल टू गो फॉर लॉन्ग अगेन। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि ये लेवल ऐसा है जहां ना मैं शॉर्ट यहाँ पे सजेस्ट करूंगी और ना मैं लॉन्ग करूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इधर साइड मतलब कि मार्जिन कॉल्स का बहुत ज्यादा यहाँ पे रिस्क होगा। ठीक है, अगर आप पेशेवर ट्रेडर हैं तो यहाँ पर लॉन्ग तो नहीं बनता वंदना जी के अनुसार, शॉर्ट भी ना करें क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बाजार सब कुछ खींच के ले जाता है। चुपचाप बैठें, और अगर करेक्शन मिलता है, आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो ज़रूर सिल्वर आप ले सकते हैं, वरना सिल्वर ETFs में भी काफ़ी जान दिख रही है। वंदना जी, ये तो बात हुई चांदी की, जिसको हम नए सोने के हिसाब से देख रहे हैं। जो सोने की चमक और दमक देखी जाती थी, वो आजकल चांदी में हमको निखरती हुई दिख रही है। बताइए, सोने पर क्या राय है? सोने ने लंबा कंसोलिडेशन यहाँ पे शैलेंद्र जी दिखाया है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इवेंट रिस्क आने वाले और इस हफ्ते में ही है। मुझे सबसे बड़ा इवेंट रिस्क यहाँ पे लग रहा है कि एक तो अगर जापान का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो डॉलर इंडेक्स यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन लेगा, और उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये जो $4,400 के जोन में हम यहाँ पे स्टक हैं, ये रेंज यहाँ पे ब्रेक हो सकती है और $45 के करीब जा सकते हैं, और हमारी मार्केट में ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो सकता है 1,38,000 40,000 काइंड ऑफ लेवल। तो एक इवेंट रिस्क है, और बहुत कुछ डिपेंड करता है कि जो बैंक ऑफ जापान है वो क्या यहाँ पे एक स्टेप लेता है, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि एकदम लॉन्ग कंसोलिडेशन में अभी थोड़ा सा गोल्ड है। 4250 मुझे लोअर साइड लग रहा है, हायर साइड मुझे 4400 मतलब लग रहा है। 4400 ब्रीच होता है देन 4500, लेकिन बायस यहाँ भी अपसाइड का है। अभी इसने कोई बेयरिश इंडिकेशन नहीं दिया है। हाँ, चांदी में इसलिए चमक है क्योंकि चांदी ने कहा है कि बहुत दिनों तक मैं गोल्ड और बेस मेटल से मैंने यहाँ पे क्यूज लिए हैं, नाउ बेस मेटल एंड गोल्ड दे विल टेक क्यूज फ्रॉम मी। तो वो एकदम फ्रंट फुट पे है चांदी। गोल्ड थोड़े देर के लिए हम कह सकते हैं कि बैक फुट पे है, लेकिन जैसे ही 4387 का एक लेवल क्रॉस होता है तो टेक्निकली मुझे ये कमोडिटी यहाँ पे फिर से 4500 की तरफ जाता हुआ दिख रही है। और जनवरी में एक इंटरेस्ट रेट कट की और यहाँ पे संभावना है, 76% तो अभी दिखा रहा है। तो उसके हिसाब से भी मुझे लग रहा है कि जनवरी तक गोल्ड यहाँ चलेगा, इसके बाद जाके हम थोड़ा सा कंसोलिडेशन आता हुआ देख सकते हैं। जी जी जी, एक बहुत ही जल्दी से अगर आप राय कॉपर पर देती हुई दिखें, धकाधक तेजी और अच्छी खरीदारी कॉपर को भी एक रिकॉर्ड हाई पर ले जाती हुई दिखी है।
ये साल आर्बिट्रेज कर रहा है शैलेंद्र जी। देखा जाए तो एक्सचेंजेस की अपनी अपनी चाल रही हैं बिकॉज ऑफ टैरिफ एंड अदर रीजंस। कॉपर मुझे लग रहा है कि $500 प्रति टन के प्रीमियम से ले रहा है, अभी यूएस इंपोर्ट कर रहा है, और एक फियर फैक्टर ने इस कमोडिटी को प्रीमियम पे ट्रेड करा रखा है। तो मेरे ख्याल से स्कैरसिटी तो यहाँ पे है, डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से यूएस में इंपोर्ट हो रहा है, इस कमोडिटी में हम लोग आने वाले टाइम में एक बारी 1250 का रेंज देख सकते हैं। एलएमई की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 12,800 से लेके 13,000 आप फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो रैली जो कि गोल्ड से शुरुआत हुई थी, उसने सिल्वर में फिर यहाँ पे रैली आई है, फिर यहाँ पे हमने जिंक में देखा, कॉपर में देखा, अब कॉपर के बाद एल्यूमिनियम ये शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो बुलिश जो कमोडिटी साइकिल है, ये फेज वाइज हर मतलब कि सेक्टर में अभी जा रहा है। जी वंदना जी, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपका इन 3 शानदार, बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही सधे हुए व्यूज़ देने के लिए चांदी, सोना और तांबे पर। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। That, ladies and gentlemen, was Vandana Bharti, a very well-known precious metals analyst with SMC Global. She sees several upsides in both silver and gold after a bit of consolidation, but copper looks good. Thank you for watching. Hello and welcome. You're watching Business Today. This is Astha Chopra. Well, Mirai Estates Mutual Fund